बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है, इसका नाम है nth रूट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशंस के हम शुरू करेंगे। इफ वी हैव टू complex numbers, if we have two complex numbers z1 and z2 such that z1 and z such that z is equal to z1 power n or z1 is equal to z power 1 over n, then z1 is the nth root of this complex number z. That is, then z1 is the nth root of z. Understand? तो अगर हम आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो z1, उसका nth रूट कैसे निकालें, इसके तरीका कैसे है देखें। इन पोलर फॉर्म वी कैन राइट z is equal to r cos of theta plus iota sin of theta. Now we have to find z power 1 over n. Then the nth root of complex number z power 1 over n will be equal to r cos theta plus iota sin theta whole power 1 over n. So we can write z power 1 over n is equal to r power 1 over n into cos of theta plus iota sin of theta over n by using de Moivre's theorem here. Now, cos and sin are periodic functions. Therefore, we can write z power 1 over n is equal to r power 1 over n into cos of theta plus 2k pi over n plus iota sin of theta plus 2k pi plus iota sin of theta plus 2k pi over n. So this is the formula for to find the nth root of a complex number, and here k is an integer whose value can be 0, 1, 2 up to n minus 1. That is, अगर हमने फोर्थ रूट निकालना हो तो k की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3 तक जाएगी। अगर हमने फिफ्थ रूट निकालना हो तो k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगी। सो n से एक कम रखना है हमने।
आगे हमने इसलिए यूनियन की वैल्यूज क्योंकि इसके बाद दोबारा ऐसे हमने आपको रिपीट करना शुरू कर देना है, तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स जो होंगे वो दिया है। तो अगर आप एन रूट है तो एन आएंगे, फोर्थ रूट है फोर रूट आएंगे, बाकी दोबारा वैल्यू निकाल जाए इनको रिपीट करते जाएगी क्योंकि वो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के डिस्टिंक्ट nth रूट निकालने का ये फार्मूला है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनको देख के आपको ज़्यादा ये टॉपिक वाज़ेह हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि इवेल्युएट 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा होल पावर 3/4, ये हमने इवेल्युएट करनी है। 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा होल पावर 3/4, ये हमने इवेल्युएट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें। सबसे पहले आप सपोज कर लें कि कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू है 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। दिस इज ए कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हमने सबसे पोलर फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर x क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के साथ, तो x हमारे पास 1/2 है और y क्या है, y is under root 3/2। Therefore, modulus of this complex number will be equal to x square 1/2 square plus y square under root 3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, so r will be equal to 1/4 plus 3/4 whole under the root sign, which is equal to 4/4 under root, so r is equal to 1. This is the modulus of this complex number. Now we find the argument theta. Theta is equal to tangent, the principal argument. Theta is equal to tan inverse of y over x. Y is under root 3/2, x is 1/2. So this is equal to tangent inverse of under root 3/2. So theta is equal to pi/3. Tangent inverse of under root 3 is equal to pi/3. So theta, the principal argument of this complex number, is pi/3. Therefore, in polar form, we can write this complex number z as r is 1, so 1 into cos of pi/3 plus iota sine of pi/3. So z is equal to cos of pi/3 plus iota sine of pi/3. This is our polar form of this complex number. Now we have to find z power 3/4. Therefore, z power 3/4 will be equal to cos of pi/3 plus iota sine of pi/3 whole power 3/4. अब सबसे पहले हमने ये 3 को सॉल्व करना। इसमें डिमॉर्स थ्योरम लगाया तो बन जाएगा cos of 3 into pi/3 plus iota sine of 3 into pi/3. So z power 3/4 will be equal to and whole power 1/4. So this is equal to cos of pi plus iota sine of pi. Now we have to find the fourth root of this complex number. We have to find the fourth root of cos pi plus iota sine pi. हाँ जी, ये हमने सॉल्व करना है अभी। तो z पावर 3/4 will be equal to, again write cos of pi plus iota sine pi whole power 1/4.
We have to find. Now we have formula for nth root as r power 1 over n cos of theta plus 2k pi over n plus iota sine of theta plus 2k pi over n. This is our formula for the nth root of complex. So fourth root of this complex number will be equal to z power 3 over 4 will be equal to cos of theta is pi plus 2k pi over n is 4 plus iota sine of pi plus 2k pi over 4, where k can take values from 0 to 1, 2 and 3. This can be simplified as z power 3 over 4 is equal to cos of pi is common 1 plus 2k into pi over 4 plus iota sine of इसको हमने आप सिंपलीफाई करना है। देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा z पावर 3 over 4 is equal to cos of pi is common 1 plus 2k into pi over 4 plus iota sine of 1 plus 2k into pi over 4, where k can take values. हम k की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। फॉर k is equal to 0, we have z power or z0 means the zeroth root of this fourth root में ये पहला रूट 0 के लिए वो क्या आएगा cos of k की जगह 0 पुट करें तो 1 plus 0 is 1, तो cos of pi by 4 plus iota sine of pi by 4. This can be written as cis pi by 4, और हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो cos pi by 4 is under root 1 over 2 plus iota sine pi by 4 is again 1 over under root 2. So this is z0. Similarly, for k is equal to 1, we have z1 and this will be equal to cos of k is 1. So 1 plus 2, 1 plus 2 is 3. So this will become cos of 3 pi by 4 plus iota sine of 3 pi by 4, which can be written as cis 3 pi by 4, and its value क्या होगी? अब cos 3 pi by 4, 3 pi by 4 is in second quadrant here, somewhere here. This is 3 pi by 4. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? cos 3 pi by 4 की वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू होगी जो सेकंड क्वाड्रेंट है जो पाई बाई 4 की होगी, लेकिन cos यहाँ पर नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बिकम -1 over under root 2 plus iota 1 over under root 2. Similarly, for k is equal to 2, we have z2 and this can be written as cos of, like 2 put करें 1 plus 2 to the 4, 4 plus 1 is 5, so this will be 5 pi by 4 plus iota sine 5 pi by 4. This is in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों नेगेटिव होते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, यू भी लिख सकते हैं हम, वैल्यू होगी -1 over under root 2 minus iota 1 over under root 2. Similarly, z3 is for k is equal to 3, fourth root is equal to cos of, और 3 पुट करें 3 to the 6, 6 plus 1 is 7, so it is 7 pi by 4 plus iota sine of 7 pi by 4
This is in the fourth quadrant. Fourth quadrant में cos पॉजिटिव होता है, जैसे कि 1/√2 प्लस साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस आयोटा 1/√2. So these are the fourth roots of this complex number. इसी में बाद का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1. नाउ check it. We want to find the product of these complex numbers, these nth roots, these fourth roots. तो हमारे पास चार रूट्स हैं, कौन से हैं? Z0, Z1, Z2 एंड Z3. इनकी प्रोडक्ट लेनी है हमने. जब मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर will be equal to sum of the individual arguments, argument of Z1 plus argument of Z2. So if we have to find the product of these four roots, then we have to add them. Here the argument is pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4 and 7 pi by 4. So their product will have an argument of pi by 4 plus 3 pi by 4 plus 5 pi by 4 plus 7 pi by 4. So this is cos of argument of Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4. Similarly plus दूसरा क्या आएगा, iota sin of pi by 4 plus 3 pi by 4 plus 5 pi by 4 plus 7 pi by 4. इनको ऐड करें तो बनता है 16 pi by 4. 16 pi by 4 is 4 pi. 4 pi is the some even multiple of pi. It is equal to 0. So therefore this is equal to cos of 4 pi plus iota sin of 4 pi. अब पाई का अगर कोई भी इवन मल्टीपल लें उसकी वैल्यू वही होगी साइन और कास की जो 0 पे होती है. तो cos 0 is 1, so it is equal to 1 sin. हाँ जी, अब देखें तो cos of 0 4 pi 0 actually, तो cos 0 is 1 and sin pi 4 pi, sin 0 is 0, so it is equal to 1 plus 0 is equal to 1. So we prove that the continued product of the nth roots of the complex number is equal to 1. That's it. Question पूछा जा सकता है कि use the De Moivre's theorem to solve x4 minus x3 plus x2 minus x plus 1 is equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है. अब इस इक्वेशन को देखें, अगर और से देखें बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज. देखें इसको मैं रूल लिख दूं, 1 प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x3 plus x4 is equal to 0. So they are equivalent because numbers are commutative. So this is actually a geometric sequence or series where a is equal to 1 and r common ratio is equal to minus x, because we multiply 1 with minus x we get minus x, we multiply r minus x with minus x we get x square, we get multiply x square with minus x we get minus x3 and so on. So this is a, and here n number of terms are 1 2 3 4 5. So this, the left hand side is equal to sum of these 5 numbers geometric sequence, and formula is the sum of n numbers of a geometric sequence is equal to 1 minus geometric series is equal to 1 minus Rn over 1 minus r, and this is equal to 0 here given in sum is equal to 0. So we can write a is 1 into 1 minus
माइनस एक्स पावर 5 ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन रिटन एज माइनस एक्स पावर 5. ऑड पावर है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो 1 प्लस एक्स पावर 5 ओवर दिस इज माइनस माइनस प्लस अगेन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया. अब देखें अगर मैं इसको, और इसमें ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ये 0 हो जाए उसका मतलब ये है कि ये समथिंग बाय 0 इनफिनिट अनडिफाइंड हो जाएगा. सो 1 प्लस एक्स 0 नहीं होना चाहिए. एक्स की सिर्फ वो वैल्यूज परमिसिबल है जिनमें 1 प्लस एक्स 0 नहीं होगा. इसको इधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स पावर 5 इज इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -1 होल पावर 1 over 5. So x, the root of this equation is basically the fifth root of -1. Now एक बात बड़ी दिलचस्प है यहाँ पर, -1 पावर 1 over 5, फिफ्थ रूट कितने आएंगे? एक 0 पे आएगा, एक 1 पे आएगा, एक 2 पे, 3 पे, 4, 5 आएंगे. देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने रूट चाहिए? 4. एक एक्स्ट्रा रूट आएगा, वो हमें देखना होगा कौन सा एक्स्ट्रा रूट है, उसको हमने ओमिट कर देना है. बाकी 4 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे. देखते हैं हम सॉल्व करते हैं इसको. हमारे पास जो फार्मूला है वो यही है कि nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r पावर 1 over n cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, where k can take values from 0 to n minus 1. In our case, n is 5 and complex number is -1. पहले हम इसका आर्गुमेंट निकालते हैं. तो इस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट r क्या होगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो r विल बी इक्वल टू x इज हियर -1 स्क्वायर, y इज 0 because -1 can be written as -1 plus 0 आयोटा. सो प्लस 0 स्क्वायर, तो ये r हमारे पास आ जाएगा 1. एंड थीटा हियर इज टेनेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x. y इज 0 ओवर -1. ये कौन सा है? ये अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस बनती है. ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव x साइड है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस. तो ये एंगल हमें चाहिए. ये कितना है? ये एंगल पाई है. तो थीटा इज इक्वल टू पाई है. तो हमने थीटा भी निकाल लिया और मॉडुलस भी निकाल लिया. तो अब हम r निकाल सकते हैं. r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपके पास रहेगा. तो r here is x is equal to क्या बन जाएगा? r is 1, so 1 power 1 over 5 is 1. So no need to write it. We write cos of theta is pi plus 2k pi over 5. n is 5 here. Plus iota sine of pi plus 2k pi over 5. अब हमने, और k की वैल्यूज क्या है? k की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 एंड 4. दीज आर 4 वैल्यूज. इन 5 वैल्यूज के लिए डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे. तो जब हम k को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x at 0 इज इक्वल टू, आप बाद बुक्स में एक्स के भी लिखते हैं इसको, k की वैल्यू डिपेंड करते हुए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x0 इज इक्वल टू क्या बनेगा? cos ऑफ 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया, तो उसके बाद बनेगा 0 पाई प्लस 0 इज पाई ओवर 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई ओवर 5, या इसको हम लिख सकते हैं CIS पाई ओवर 5. सो दिस इज फर्स्ट रूट. सेकेंड रूट क्या होगा? फॉर k इज इक्वल टू 1 पुट करें इसमें, देखें तो x1 हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा cos ऑफ
1 पुट करें, पाई प्लस के इज 1 2 पाई, सो ये बन जाएगा 3 पाई ओवर 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई ओवर 5, तो ये बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं CIS 3 पाई बाई 5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फॉर k इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या बनेगा x2 विल बी इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ पर 2 पुट करें, पाई प्लस 2 टू द 4 पाई, पाई प्लस 4 पाई 5 पाई, 5 पाई ओवर 5 इज आयोटा साइन ऑफ 5 पाई ओवर 5, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये हमारे बनेगा x2 इज इक्वल टू cos पाई इज -1 प्लस आयोटा साइन पाई इज 0, तो इज इक्वल टू -1। हमने पहले ये देखा था कि x प्लस 1 कैन नॉट बी 0, सो अगर x को हम -1 पुट करें वहां पर, तो x प्लस 1 0 हो जाएगा, इसलिए ये वाला रूट नॉट परमिसिबल, ये रूट जो है ये एक्सट्रानिस रूट हमारे पास आ गया। हाँ जी, फॉर k इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करें, पाई प्लस 2 3 6 6 प्लस cos ऑफ 3 पुट करें, पाई 2 3 6 6 पाई प्लस पाई इज 7 पाई, 7 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाई 5, इसको हम लिख सकते हैं CIS 7 पाई बाई 5। हाँ जी, फॉर k इज इक्वल टू 4 वी हैव x4 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 4 8 पाई हो गया, 8 पाई प्लस पाई 9 पाई, 9 पाई बाई 5, तो आगे है k इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास आएगा x4, यहाँ पुट करें, 2 4 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 5, सो बनेगा cos ऑफ 9 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 9 पाई बाई 5, इसको हम लिख सकते हैं CIS 9 पाई बाई 5। तो हमारे पास ये 4 रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, कौन कौन से हैं, पहला है CIS पाई बाई 5, दूसरा है CIS 3 पाई बाई 5, तीसरा कौन सा है CIS 7 पाई बाई 5 एंड फोर्थ इज CIS 9 पाई बाई। ये वाला रूट जो है फॉर k इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट परमिसिबल फॉर दिस इक्वेशन। इसकी वैसे भी इक्वेशन के 4 रूट्स आने चाहिए, तो 4 रूट्स कौन कौन से हैं, एक ये है 5 पाई बाई 5 वाला, एक 3 पाई बाई 5 के साथ, एक 7 पाई बाई 5 के साथ, और एक 9 पाई बाई 5 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो विच आर रिलेटेड टू द nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।